Bismillahirrahmanirrahim. My name is Aman Rafiq, having roll number 17ES17. My presentation topic is robotics. The contents about my presentation topics are history, definition, laws of robotics, types of robots, key components, how do robots work, the purpose of robots, applications, advantages and their disadvantages. First, we have history of robotics. The term robot was first used in 1920 in a play called RUR or Resumes Universal Robots by the सीजेक नॉवेलिस्ट कैरल सेपिक. जो टर्म रोबोट थी वो सबसे पहले यूज हुई थी 1920 में एक प्ले के इन अ प्ले कॉल्ड RUR Resumes Universal Robots है वो प्ले, और किसके ज़रिए सीजेक नॉवेलिस्ट कैरल सेपिक. द वर्ड रोबोट कम्स फ्रॉम द वर्ड रोबोटा. जो वर्ड रोबोट है वो आता है वर्ड रोबोटा से. मीनिंग इन सिजेक वर्कर और सर्वेंट, जिसके मीनिंग है सिजेक में वर्कर या फिर सर्वेंट. देन वी हैव डेफिनेशन ऑफ रोबोटिक्स. एन ऑटोमेटिक डिवाइस दैट परफॉर्म्स फंक्शंस. एक ऑटोमेटिक डिवाइस है जो परफॉर्म करती है फंक्शंस को, नॉर्मली एस्क्राइब टू ह्यूमंस और अ मशीन इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन. या फिर मैकेनिकल डिवाइस दैट परफॉर्म्स ह्यूमन टास्क ईदर ऑटोमेटिकली और बाय रिमोट कंट्रोल. या फिर कोई मैकेनिकल डिवाइस है जो परफॉर्म करती है ह्यूमन टास्क को ऑटोमेटिकली या फिर रिमोट कंट्रोल के ज़रिए. A reprogrammable multifunctional manipulator designed to move materials, parts, tools, or specialized devices through various programmed motions for the performance of a variety of tasks. Now we have laws of robotics. Asimov proposed 3 laws of robotics and later added the zeroth law. Zeroth law: a robot may not injure humanity or through inaction allow humanity to come to harm. Law 1: a robot may not injure a human being or through inaction allow a human being to come to harm unless this would violate a higher order law. Law 2: a robot must obey orders given to it by human beings except where such orders would conflict with the first law. Law 3: a robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the first law. Now we have types of robots. The most common types of robots are: number 1, mobile robots; number 2, stationary robots; number 3, autonomous robots; number 4, remote control robots; number 5, virtual. First we have mobile robots. Robots that move around on legs, tracks or wheels. All mobile robots are able to move. Usually they perform tasks such as searching. Mobile robots are of 2 types: rolling robots, walking robots. Rolling robots have wheels to move around. They can easily or quickly search. However, they are only useful for flat areas. Walking robots on legs are usually brought in when the train is rocking. Most robots have at least 4 legs. Usually they have 6 or more. Number 2 is stationary robots. The robots are fixed in one place and cannot move. ये robots जो होती है वो fixed होती है एक ही place पे और ये move नहीं कर सकती. This category includes robotic arms, और ये कैटेगरी जो है वो इंक्लूड करती है रोबोटिक आर्म्स को, कंप्यूटराइज्ड मशीन टूल्स और एंड मोस्ट अदर इंडस्ट्रियल रोबोट्स. इंडस्ट्रियल रोबोट्स क्या होती हैं? इंडस्ट्रियल रोबोट्स आर रोबोट्स यूज्ड होती है इन मास प्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल वेल्डिंग रोबोट्स, CNC ड्रिल्स, etc. Number 3, autonomous robot. Autonomous robots are self-supporting, in other words self-contained. ऑटोनोमस रोबोट जो होती है वो सेल्फ सपोर्टिंग होती है और दूसरे अल्फाजों में सेल्फ कंटेंड होती है. इन अ वे दे रिले ऑन देयर ओन ब्रेन. मतलब ये जो है वो डिपेंड करती है अपने ही ब्रेन पर.
For example, the robot vacuum cleaner. Number 4, remote control robot. Complicated tasks are still best performed by human beings with the real brain power. A person can guide a robot by remote control. एक person जो है वो guide कर सकता है robot को by remote control के ज़रिए, और person can perform difficult and usually dangerous tasks without being at the spot where the tasks are performed. Number 5, virtual robot. Virtual robot don't exist in real life. वर्चुअल रोबोट जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती रियल लाइफ में. वर्चुअल रोबोट्स आर जस्ट प्रोग्राम्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इनसाइड अ कंप्यूटर. की कंपोनेंट्स मतलब कंपोनेंट्स जो होते हैं रोबोट में विच आर एज फॉलो. सबसे पहले आता है हमारे पास मैनिपुलेटर, मेन बॉडी ऑफ रोबोट, लिंक्स, जॉइंट्स, अदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द रोबोट. एंड इफेक्टर आता है फिर हमारे पास, द पार्ट दैट इज़ कनेक्टेड टू द लास्ट जॉइंट हैंड ऑफ अ मैनिपुलेटर. फिर आता है हमारे पास एक्चुएटर, मसल्स ऑफ द मैनिपुलेटर. ये मसल्स होते हैं मैनिपुलेटर के, उनमें हमारे पास आते हैं सर्वो मोटर्स, स्टीपर मोटर्स, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक सिलेंडर. देन वी हैव सेंसर्स to collect information about internal state of the robot or to communicate with the outside of the environment. ये क्या करता है, कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन इंटरनल स्टेट रोबोट, इंटरनल स्टेट के बारे में रोबोट की, और फिर क्या करता है कम्युनिकेट करता है आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट के साथ. कंट्रोलर होता है फिर हमारे पास, ये सिमिलर होता है सेरेबेलम से, और ये क्या करता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है मोशन ऑफ एक्चुएटर. ठीक है. फिर आता है हमारे पास प्रोसेसर, द ब्रेन ऑफ द रोबोट. ये ब्रेन होता है रोबोट का, और इट कैलकुलेट्स द मोशन एंड वेलोसिटी ऑफ द रोबोट्स जॉइंट etc. देन वी हैव सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, रोबोटिक सॉफ्टवेयर एंड द कलेक्शन ऑफ रूटीन्स. नाउ वी हैव हाउ डू रोबोट्स वर्क, मतलब रोबोट काम कैसे करता है. A robot is any moving machine. रोबोट जो है वो कोई भी मूविंग मशीन है that can be programmed to perform tasks and gather information from the surrounding. और ये क्या करता है, गैदर करता है इंफॉर्मेशन को सराउंडिंग से. रोबोट्स वर्क फ्रॉम अ सेंट्रल माइक्रो प्रोसेसर that controls their movements, जो कि क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं उनकी मूवमेंट को. They also have sensors, इनके पास क्या होते हैं, सेंसर्स भी होते हैं for examining the environment and power sources. Then we have the purpose of robots. Robots are also used for the following tasks such as repetitive tasks, dangerous tasks, impossible tasks, or can operate equipments at much higher precision than humans, cheaper on a long term basis. मतलब रोबोट मेन पर्पज़ यही होता है कि जो डेंजरस टास्क होते हैं हमारे पास उनको ये परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, और इम्पॉसिबल टास्क जो होते हैं उनके लिए ये यूज़ होते हैं. एंड सो एप्लीकेशंस होती हैं हमारे पास, मशीन लोडिंग होती है, वेल्डिंग, पेंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सैम्पलिंग, इंस्पेक्शन, मेडिकल एप्लीकेशंस जितनी भी होती है हमारे पास, हज़ार्डस एनवायरनमेंट जो होता है, अंडर वाटर है, स्पेस एंड रिमोट लोकेशंस. देन वी हैव एडवांटेजेस ऑफ रोबोटिक, यूज टू डू रिपीटेटिव बोरिंग एक्शंस और जॉब, परफॉर्म करता है वैरायटी ऑफ टास्क को, इम्प्रूव क्वालिटी, इंक्रीज इन प्रोडक्शन करता है, परफॉर्म डेंजरस टास्क जो ह्यूमन नहीं कर सकता. रोबोट्स असिस्टिंग द हैंडीकैप, रोबोट डू नॉट गेट सिक, ये मतलब सिक नहीं होते, ये मतलब काम करते 24 आवर्स विदाउट कंप्लेनिंग. डिसएडवांटेज ये होता है कि ये काज करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, और मोर कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है. अनएजुकेटेड पर्सन जो होते हैं वो हैंडल नहीं कर सकते इसे. थैंक यू.